Good evening to all of you and welcome in this TCube 3 channel for the GATE classes. I Vivekanand welcome all of you who are the real aspirant of the GATE examination and those who are sincerely preparing the GATE examination with their dedicated efforts. So let us start the fifth lecture of electromagnetic theory, and the title of the topic is capacitances and their interfaces. So, firstly, we will see capacitance. We have already derived in earlier classes the value of the parallel plate capacitor is A epsilon by D, and which can also be represented as A epsilon naught epsilon R by D. So, this is the value of a parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor का जो capacitance है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, parallel plate capacitor. कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यदि हमारे पास है तो उसका जो कैपेसिटेंस है C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस which is given by this particular formula. Now as I told you, we have to discuss about the interfaces also. Interfaces. Now there are two popular kind of interfaces of the capacitor as far as the parallel plate capacitor is concerned. One is called parallel interface, another is called perpendicular interface. Parallel interface and perpendicular interface. Perpendicular interface. Now what do you mean by parallel interface? Parallel interface means suppose we are having this parallel plate capacitor like this, and we are injecting or we are dividing the distance between the plate through the through the dielectric in such a manner so that the distance divides. Like suppose I am putting one layer of glass over here or silica over here, and this is let's say air. तो ये जो पहली लेयर है वो ग्लास की है, मैं इसको क्रॉस से दिखा देता हूँ, और दूसरी लेयर एयर की है, मैं इसको सर्कल से दिखा देता हूँ. तो आप देखेंगे ये पहला डाइलेक्ट्रिक है, ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, और दोनों डाइलेक्ट्रिक किस तरह से रखेगा एक दूसरे के पैरेलल, इसलिए इसका नाम क्या है, पैरेलल इंटरफेस. नाउ सपोज यही दो डाइलेक्ट्रिक मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखता, और कैसे रखता, ताकि वो प्लेट के परपेंडिकुलर आते, ठीक है, मतलब यहाँ पे एरिया डिवाइड होता है, ठीक है. सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा दिखा दिया, ये क्रॉस से और ये सर्कल. नाउ दिस इज ग्लास and this is air, ठीक है, this is 1, this is 2. लेकिन इस केस में क्या डिवाइड हो रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिवाइड हो रही थी, और इस केस में क्या डिवाइड हो रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड हो रहा है. तो ये बात हमें ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर इंटरफेस में एरिया डिवाइड होता है और पर पैरेलल इंटरफेस में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिवाइड होती है, ठीक है. दूसरी बात, जब भी हम पैरेलल इंटरफेस करेंगे तो जो कैपेसिटेंस बनेंगे दो, जैसे यहाँ पे एक बन गया कैपेसिटेंस ग्लास डाइलेक्ट्रिक को लेके, एक बन गया कैपेसिटेंस एयर डाइलेक्ट्रिक को लेके, तो आप देखेंगे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी जो कनेक्शन है वो सीरीज निकलेगा. यानी पैरेलल इंटरफेस में हमेशा सीरीज इंटरकनेक्टेड होंगे कैपेसिटेंस, ठीक है. जबकि आप देखेंगे परपेंडिकुलर इंटरफेस में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आपस में जुड़ गए, पॉजिटिव बन गए, ये दोनों नेगेटिव हैं, आपस में जुड़ के नेगेटिव बन गए. यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरफेस हमें किस प्रकार का कनेक्शन देता है, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है. अब आप देखिए दो टर्म आ गए, एक को हम क्या नाम दे रहे हैं, पैरेलल इंटरफेस, और इसको हम कह रहे हैं पैरेलल कनेक्शन. बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. व्हेन आई एम सेइंग पैरेलल इंटरफेस, इट मींस द कनेक्शन इज सीरीज, एंड व्हेन आई एम सेइंग परपेंडिकुलर इंटरफेस, इट मींस द कनेक्शन इज पैरेलल. So this thing we have to keep in mind while solving the problem, because problems are very simple. But if there is a little bit confusion in our mind कि parallel interface means parallel connection or parallel connection means parallel interface, the whole thing will become wrong. It should be very very clear in our mind that parallel interface is a series interconnection of the capacitances, whereas perpendicular interface is a parallel interconnection of the parallel connection of the capacitances. Okay. तो आइए इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से ये कनेक्शन होगा. ओके, आई हैव टू ऐड फ्यू स्लाइड्स ओवर हियर.
So let us see in detail parallel interface and perpendicular interface. Okay, suppose we are having this kind of parallel plate capacitor. Okay, and one dielectric we have placed like this, okay, maybe glass or silica, another dielectric like this. This is having a distance, let's say d1, and this is having a distance, let's say d2, whereas area is common for both the dielectric, that is a. First dielectric is having a dielectric constant epsilon r1, and second dielectric is having a dielectric constant epsilon r2, and the total distance between the plates of the capacitor is d. So I can say that first capacitor is having a capacitance C1 is equals to A epsilon naught epsilon R by D1. Second capacitance is second capacitance can be expressed like A epsilon naught epsilon R2 by D2. Now, as I told you, this connection is nothing but the parallel interface, but the connection is nothing but series. क्यों है ये सीरीज? ये पॉजिटिव पोलराइज्ड प्लेट हो गई, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. So when different polarity plates are connected to each other, it is a series connection. It is a series connection. और सीरीज के कनेक्शन में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? 1/c equivalent is equals to 1/c1 plus 1/c2. So what I can write? I can simply write 1/c1 is nothing but d1 upon a epsilon naught epsilon r1 plus d2 upon a epsilon naught epsilon r2 is equals to 1/c equivalent. Okay, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? 1/a epsilon naught कॉमन निकल सकता है. So I can better write this particular expression 1/a epsilon naught in the bracket d1 upon epsilon r1 plus d2 upon epsilon r2. It's very simple. I think everybody is getting this. Okay, next slide में हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, C equivalent is equals to, I can also write from the previous slide, a epsilon naught divided by, okay, this can be written as a epsilon naught divided by d1 upon epsilon r1 plus d2 upon epsilon r2. और इसी प्रकार मान लीजिए कि n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक लेयर अगर हम लिखते तो हम क्या लिख सकते थे? C equivalent is equals to a epsilon naught divided by sigma di upon epsilon ri, I equal to 1 to n. Now this is the formula in general for which kind of interface? For parallel interface means series connection when n number of dielectric with the different distance between the plate with a different thickness are inserted between the originally parallel plate capacitor. Okay, so this can be the formula. तो आइए अब हम दूसरा इंटरफेस देखते हैं. दूसरा इंटरफेस हमारा है परपेंडिकुलर इंटरफेस. परपेंडिकुलर interface which is also known as parallel connection. ठीक है, earlier it was parallel interface but series connection, now it is perpendicular interface but parallel connection. ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में हम डाइलेक्ट्रिक जो रखेंगे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेट रखेंगे. मान लीजिए हमने एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ रख दिया इस तरह से, दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने ये रख दिया. ठीक है, ऐसे ही तीसरा भी रख सकते हैं. तो इसमें एरिया डिवाइड होता है. लेट्स से दिस इज A1, this much area is, let's say, A2, this area is A and the distance will be common. ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो C1 बराबर क्या आएगा? A1 epsilon naught epsilon r1. मान लीजिए ये ग्लास या सिलिका है, इसका epsilon r1, ये एयर है epsilon r2, या कुछ और भी हो सकता है. A1 epsilon naught epsilon r1 by d, and similarly C2 can also be written as A epsilon naught epsilon r2 by d. Now, since the connection is parallel, we know that in parallel interconnection, capacitance can be directly added together, C1 plus C2. So, what it will become? A is different, na? So, epsilon naught by D is common. So, I can write here, instead of A, epsilon naught by D is common. In the bracket, what I will get? A1 epsilon R1 plus A2 epsilon R2. अब मान लीजिए कि n लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम रखते हैं, तो इस C equivalent हमारा क्या आएगा? C equivalent आएगा epsilon naught by D. In the bracket, I can write sigma I equal to 1 to n AI epsilon Ri. Okay, AI epsilon Ri. A1 epsilon R1, A2. This should be A2. Okay,
let me make certain correction it. Okay, so this is the equivalent capacitance in case of perpendicular interface or parallel connection. ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम. ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. प्लेट का एरिया है 100 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इस तरह से रख दिया, एक सिलिका रख दिया जिसका 6.5 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे एयर रख दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1, वी नो दैट. ठीक है, इस तरह से रखा. एंड टोटल डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 0.2 centimeter and this distance is nothing but 0.8 centimeter. So overall distance is nothing but 1 centimeter. ठीक है, so let us calculate the capacitance. ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं. तो पहले का यदि हम कैपेसिटेंस निकालेंगे C1 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 बाय D1. ठीक है, तो एरिया तो कॉमन है. ठीक है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा. और C2 यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, C2 के लिए A1 या A2 लिखने की जरूरत नहीं, A ही लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बाय D. सो लेट अस पुट देयर वैल्यूज. ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, एप्सिलॉन R1 कितना 6.5 और D1 कितना है यहाँ पे 0.2 ये सेंटीमीटर है. ठीक है, तो 10 की पावर -2 भी आ जाएगा. ठीक है, so what I can write here 2 into 10 की पावर -3, यानी ऊपर चला गया तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 बटे 2 यानी 500 का 6.5 में गुणा करेंगे तो 500 गुणा 6 यानी 3250, 3250 A एप्सिलॉन नॉट. और दूसरे को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट, नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन R2? Epsilon R2 is basically 1 and the distance is 0.8 centimeter, 0.8 into 10 to the minus 2. So this will be basically 8 into 10 to the minus 3. 8 into 10 to the minus 3 यानी 1000 by 8. 1000 by 8 यानी 500 by 4. 500 by 4, 250 by 2, 125. So this is 125 A epsilon. ठीक है, A की मैंने वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि ये तो कॉमन है, कभी भी मैं उसकी वैल्यू डाल के निकाल सकता हूँ. बस आपको इतना याद रखना है ये डेटा, क्योंकि इस डेटा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको बताने वाला हूं. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस डेटा. व्हेन वी आर हैविंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट इज लेट्स से 100 मिलीमीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 सेंटीमीटर एंड वी हैव इंसर्टेड वन सिलिका लेयर. ठीक है, वन सिलिका लेयर ऑफ 6.5 डाइलेक्ट्रिक ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, रिमेनिंग इन 0.8 सेंटीमीटर ओनली एयर इज देयर. ठीक है, नाउ द कैपेसिटेंस is basically a parallel interface or series connection. We have determined the individual capacitance C1 and C2. Now चूंकि ये series interconnection हो गया है, ठीक है, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, यानी पहले कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वही दूसरे पे आएगा. पहले पे चार्ज को क्या लिख सकते हैं C1 V1, दूसरे पे चार्ज को क्या लिख सकते हैं C2 V2, यानी हम क्या लिख सकते हैं V1 by V2 is equals to C2 by C1. कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने पढ़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V1 plus V2 is equals to C2 upon C1 plus C2. It means I can write V1 is equals to V1 plus V2 मतलब total voltage which is applied across the plate. So this will be C2 upon C1 plus C2 into V. और सिमिलरली अगर हम कंपोनेंडो लगा दें तो V1 यानी ऊपर वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज निकाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस दूसरे का आ रहा है, तो दूसरे पे निकालेंगे तो पहले का कैपेसिटेंस आएगा, और नीचे तो सम आ रहा है तो दोनों का सम आएगा, और इंडिविजुअल और मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल वोल्टेज से. सो प्लीज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली हम देखते हैं कि ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज ना. सीरीज में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस में जब वोल्टेज डिवाइड होता है तो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होता है, यानी V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. ठीक है, V2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. लेकिन कैपेसिटेंस में ये उल्टा हो जाता है. कैपेसिटेंस में जिस कैपेसिटर की वैल्यू कम रहेगी उस पर ज्यादा वोल्टेज आएगा, जिस कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा रहेगी उस पर कम वोल्टेज आएगा. ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है. अच्छा, अब मेरा सवाल जो है वो देखिए क्या है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ठीक है, अब
ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इसकी दोनों प्लेट जो है पैरेलल प्लेट, इनके बीच में मैं 28 केवी का वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, 28 किलो वोल्ट यानी 28,000 वोल्ट, और इनकी प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर, and let's say the area of the plate is 100 millimeter square. Okay, if I am talking about the electric field between the plates, what will be the formula? Electric field क्या होती है? voltage per unit distance. voltage मैंने कितना अप्लाई किया? 28 किलोवोल्ट, और distance between the plate कितना है? 1 सेंटीमीटर. So this is basically 28 kilovolt per centimeter. Now one thing which is very important, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है? एयर है, और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1. एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डी लिख दिया मैंने, दिस इज 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक मतलब स्पेसिफाइड 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कितना वोल्टेज हमारा कैपेसिटर उस डाइलेक्ट्रिक के रहते रहते बियर कर सकता है, और उससे ज्यादा अगर हो गया तो कैपेसिटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा. उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. ठीक है, ब्रेकडाउन ना होने तक जितनी वोल्टेज बनी रहे पर सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका मतलब अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और वोल्टेज हमारा 30 किलोवोल्ट से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, तो रेशो हमेशा 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर से कम आएगा. इसका मतलब एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा. अब मान लीजिए कि डिस्टेंस में बढ़ा दो 2 सेंटीमीटर, तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा. ठीक है, मान लीजिए मैं 60 किलो वोल्ट का वोल्टेज रख लूं और 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लूं, तो भी तो मैं रेशियो लूंगा तो क्या आएगा? 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर. यानी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 सेंटीमीटर एंड आई एम अप्लाइंग 60 केवी, देन आल्सो द फील्ड इज 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर. ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इसको कह देता हूं 90 किलो वोल्ट. ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं सपोज द डिस्टेंस इज सपोज 2.5 सेंटीमीटर. तो अब इस समय फील्ड क्या हो जाएगी? 90 डिवाइडेड बाय 2.5. ठीक है, सो दिस विल बी 900 बाय 25. 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. दिस विल बी 36 किलोवोल्ट पर सेकंड. तो अगर मैंने 2.5 सेंटीमीटर पे 90 केवी दे दिया तो मेरी फील्ड क्या हो गई? 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर. मगर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, और अब हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा फील्ड हो गई, यानी अप्लाइड फील्ड इज मोर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. अप्लाइड फील्ड इज मोर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. बस यही निशानी है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. यहीं पे क्या हो जाएगा इसका? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ठीक है, आई थिंक आई मेड इट क्लियर टू यू. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो हम ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकालते हैं. सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ऑयल भरा रहता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन निकालते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि ब्रेकडाउन ना हो, और इतनी फील्ड अप्लाई कर दी कि ब्रेकडाउन हो गया. ये दोनों बातें हमें समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो इस एग्जांपल से मैंने यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश की. अच्छा, अब इसी एग्जांपल पे मैं लेता हूं कि मान लीजिए अभी तो एयर है तो फील्ड 28 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर. तो चूंकि मेरी अप्लाइड फील्ड 28 केवी पर सेंटीमीटर है, लेकिन एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है, अर्थात मेरी अप्लाइड फील्ड एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा. बहुत अच्छी बात है. अब मान लीजिए कि मैं 1 सेंटीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर पे मैं क्या डाल देता हूं? सिलिका. ठीक है, जो कि मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया. तो क्या एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा? ये मुझे बताओ. ठीक है, निश्चित तौर पे 0.2 सेंटीमीटर में मैंने सिलिका डाला तो बचे हुए 0.8 सेंटीमीटर में क्या रहेगी? एयर रहेगी. अभी देखिए दोनों का कैपेसिटेंस मेरे सामने आ चुका है, और मैंने आपको सीरीज में बताया कि चार्ज सेम होंगे तो C1 V1 बराबर C2 V2, V1 बटे V2 बराबर C2 बटे C1, और हमने V1 और V2 के फॉर्मूले भी निकाल लिए. ठीक है, तो हम किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं? एयर के अक्रॉस. तो ऊपर को V1 ले लें, नीचे को V2 ले लें, तो मैं V2 निकाल के बताऊं. ठीक है, सो आई कैन राइट हियर V2 इज इक्वल्स टू
C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। V कितना है? टोटल अप्लाइड वोल्टेज दैट इज 28 kV। C1 और C2 हमारे पास इंडिविजुअल नहीं थे लेकिन A के टर्म्स में थे, ठीक है, और हमें रेशो लेना है तो A को रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। C1 3250 A एप्सिलॉन नॉट, C1 3250 A एप्सिलॉन नॉट एंड C2 125 A एप्सिलॉन। आइए इसको रखते हैं। V2 इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू हमने रख दी 3250 A एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 3 250 125 375 है ना, 3375 और इनटू वोल्टेज, वोल्टेज मैंने कितना अप्लाई किया 28, ठीक है। तो ये मेरा वोल्टेज है। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस आया है? एयर के अक्रॉस आया है या सिलिका के? तो आंसर है ये वोल्टेज आया V2। V2 मतलब एयर के अक्रॉस, ठीक है। एयर के अक्रॉस जैसे ही ये वोल्टेज निकलेगा तो अब अप्लाइड फील्ड हम कैसे निकालेंगे? अप्लाइड फील्ड मतलब कितनी फील्ड हमने अप्लाई की, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय V2 डिवाइडेड बाय D2। तो ये जो भी आएगा कैलकुलेशन आप कर लीजिए इसका, ठीक है, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना रखेंगे 0.8 सेंटीमीटर, इसको मैंने V2 ही मान लिया अभी V2। और अब यदि ये V2 बाय 0.8 सेंटीमीटर जो है ये यदि 30 kV पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, इफ, ठीक है, देन एयर ब्रेक्स डाउन, देन एयर ब्रेक्स, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा मतलब एयर है तो अभी डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, लेकिन जैसे ब्रेकडाउन हो जाएगा इट बिकम्स द कंडक्टर। Some conducting nature can be shown by this particular air. It will be no more insulator, it will be no more dielectric, now it is a conductor. That is the meaning of dielectric breakdown, ठीक है। So I think I made it clear to you what is dielectric breakdown, what is dielectric strength, and when the dielectric breakdown takes place, and what is the condition to avoid the dielectric breakdown, ठीक है। आइए आज की क्लास में हमने जो देखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था कैपेसिटेंसेस एंड देयर इंटरफेसेस। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि जो इंटरफेसेस है ना वो दो प्रकार के हैं, पैरेलल इंटरफेस और परपेंडिकुलर इंटरफेस, ठीक है, पैरेलल इंटरफेस एंड परपेंडिकुलर इंटरफेस। ये देखिए C is equals to epsilon naught by D, epsilon naught epsilon R by D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल इंटरफेस मतलब सीरीज कनेक्शन, परपेंडिकुलर इंटरफेस मतलब पैरेलल कनेक्शन। जब भी पैरेलल इंटरफेस या सीरीज कनेक्शन होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिवाइड होगी, और जब भी परपेंडिकुलर इंटरफेस या पैरेलल कनेक्शन होगा तो एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड होगा, ओके। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि कैलकुलेशन कैसे करना है, ये देखिए, तो सिंपल है, C1 इज इक्वल्स टू पैरेलल इंटरफेस में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 बाय D1, C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बाय D2, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। सीरीज कनेक्शन है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और अगर यही n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो जाएंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा I इक्वल टू 1 to n DI अपॉन एप्सिलॉन R। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर इंटरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, तो हम डाइलेक्ट्रिक इस तरह से रखेंगे कि वो प्लेट के कैसे आए, परपेंडिकुलर, यानी निश्चित तौर पे अब एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइड होगा, ना कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इस केस में हमने C1 C2 निकाला, एरिया डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बदल रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन हम ले सकते हैं, और हम जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में तो सीधे सीधे कैपेसिटेंस जुड़ जाते हैं, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। एप्सिलॉन नॉट ये A नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको कैंसिल किया था, फिर से कर देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट बाय D हमने बाहर लिया, इन द ब्रैकेट वी आर गेटिंग A एप्सिलॉन R1 प्लस A एप्सिलॉन R2, और अगर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैं और सबके सब कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेट, देन आई कैन मेक अ जनरल फार्मूला C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय D सिग्मा I इक्वल टू 1 to n AI एप्सिलॉन R। दिस इज द फार्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन, और यू कैन से परपेंडिकुलर इंटरफेस व्हेन एरिया डिवाइड्स बट डिस्टेंस रिमेंस सेम। एक एग्जांपल बहुत सूटेबल मैंने लिया है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर का प्लेट का एरिया है, डिस्टेंस है प्लेट के बीच में 1 सेंटीमीटर, उसको दो भागों में बांटा, 0.2 सेंटीमीटर में सिलिका रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 है, 0.8 सेंटीमीटर में हमने एयर रखी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है।
दोनों के कैपेसिटेंस अलग अलग कैलकुलेट किए, ए को मैंने नहीं रखा है क्योंकि आगे आने वाले कैलकुलेशन में ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने नहीं रखी है, सिर्फ मैंने एप्सिलॉन R1 D1 एप्सिलॉन R2 D2 की वैल्यू रखी और गुणा भाग करके मैंने निकाला कि जहां पे मैंने सिलिका रखा है उसका कैपेसिटेंस ऑब्वियसली ज्यादा आएगा क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 है ना, भले ही डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ओनली 0.2 सेंटीमीटर हो, सो वो कितना आ रहा है 3250 एप्सिलॉन नॉट। और जहां एयर है भले ही डिस्टेंस 0.8 सेंटीमीटर है मगर एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है तो कैपेसिटेंस कम आ रहा है 125 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब चूंकि ये सीरीज कनेक्शन है तो चार्जेस सेम होंगे, Q1 Q2, C1 V1 C2 V2, V1 V2 C2 C2, C2 C1, कंपोनेंटो लगा दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं सीरीज कनेक्शन जब रेजिस्टेंस का होता है तो वोल्टेज का जो डिवीजन होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में होता है, लेकिन यही चीज जब कैपेसिटर में होती है तो वोल्टेज का डिवीजन कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होता है क्योंकि कैपेसिटेंस मींस एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, ओके। So V1 is equals to C2 upon C1 plus C2 into B, V2 is equals to C1 upon C1 plus C2 into B। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को समझाने की कोशिश की, वही एग्जांपल लिया। अब दो डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ एयर है, अगर मैं 28 kV का वोल्टेज अप्लाई करता हूं और प्लेट के बीच का एरिया 1 सेंटीमीटर है तो फील्ड मेरी कितनी हुई 28 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। पर चूंकि एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है और मेरी अप्लाइड फील्ड 28 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है, अर्थात अप्लाइड फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। दिस थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड प्लीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं कहता हूं अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बढ़ाऊं तो जो वोल्टेज मुझे प्लेट के अक्रॉस अप्लाई करना है उसमें भी मुझे छूट मिल जाती है, ज्यादा वोल्टेज में अप्लाई कर सकता हूं। जैसे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस प्लेट के बीच में रख दिया, अब आप 60 वोल्ट दे दो या 59 वोल्ट दे दो, रेशियो लोगे तो 30 kV पर सेंटीमीटर से कम निकलेगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन फिर नहीं होगा। मगर मान लीजिए मैंने डिस्टेंस तो 2.5 गुना करी और वोल्टेज मैंने 90 kV यानी 3 गुना कर दिया, तो अब रेशियो मेरा बढ़ जाएगा, जैसा कि निकाला तो 36 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आया, जबकि एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो चूंकि मेरी अप्लाइड फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गई है तो अब एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सुनिश्चित है, हो जाएगा। और जैसे ही एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, नाउ इट बिकम्स अ कंडक्टर, इट इज नो मोर डाइलेक्ट्रिक, इट इज नो मोर इंसुलेटर नाउ, ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने आपको एयर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल के बताया। मेरा सवाल ये था कि एक केस मैंने ये लिया और इसी में मैंने एक बार पूरी तरह एयर रखी और एक बार मैंने 20% हिस्से में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, 80% में एयर रखी। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूं, इस केस में तो आपने देखा कि भाई 28 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा। इस केस में यदि मैंने इंसर्ट कर दी डाइलेक्ट्रिक तो क्या एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, ये मुझे प्रूफ करना है, मतलब निकालना है, प्रूफ नहीं करना है, जरूरी नहीं होगा, वो तो फील्ड से ज्यादा फील्ड आएगी, अप्लाइड फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा आएगी तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकाला, और दोनों के अक्रॉस क्यों निकालूं, क्योंकि मुझे तो ये बताना है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं। तो मैं सिर्फ एयर के अक्रॉस वोल्टेज निकाला, V2 is equals to C1 upon C1 plus C2 into B, ठीक है। अब V2 मैंने एयर के लिए माना है, V1 मैंने सिलिका के लिए माना है, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू मेरे पास थी 3250 एप्सिलॉन नॉट, 125 एप्सिलॉन नॉट, ए को निकालने की जरूरत नहीं, एप्सिलॉन नॉट को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्हेनेवर आई टेक द रेशियो दिस विल कैंसिल आउट। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, लेकिन अगर आप V2 को निकालेंगे और उसको जब 0.8 सेंटीमीटर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एयर है वो सिर्फ 0.8 सेंटीमीटर में 8 मिलीमीटर के हिस्से में रह गई है। अब ये रेशो आप पाएंगे कि मेरा 30 किलोवोल्ट से ज्यादा हो जाता है। यदि हो जाता है तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एयर का हो जाएगा, नहीं होता है तो नहीं, ठीक है। नाउ ये कैलकुलेशन अब आपके जिम्मे आपको करना है। तो आई थिंक आई made the concept clear to you. What is capacitance, what is parallel plate capacitor, what is parallel interface, what is a perpendicular interface, how series connection takes place, how parallel connection takes place, how dielectric breakdown takes place, and what is the optimum condition to avoid the dielectric breakdown, ठीक है। So this is all about the capacitance. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। And best of luck. Thank you for joining us this evening.